Hey everyone, this is Dr. Swap and you're watching my YouTube channel Dental Expertise, and I'm going to start new series of OPSC Dental Exam Paper 2018. There will be 200 questions in this series. Before that, I request you all, don't forget to like and subscribe my channel. So without further ado, let's get started with part 1 of this series. Buccinita muscle is pierced by facial nerve, facial vein, facial artery और पैरोटिड डक्ट. तो जो बक्सीनीटा मसल है इसे चीक मसल्स भी कहते हैं. इसका ओरिजिन होता है मैक्सिला एंड मैंडिबल से, आउटर सरफेस ऑफ मैक्सिला एंड मैंडिबल अपोजिट द मोलार टीथ एंड फ्रॉम द टेरिगोमैंडिबुलर लिगामेंट. और इंसर्शन होता है, इसके अपर फाइबर इंसर्ट होते हैं अपर लिप में, लोअर फाइबर लोअर लिप में एंड मिडिल फाइबर डेक्यूसेट एट द एंगल ऑफ द माउथ. एंड नर्व सप्लाई कहाँ से होती है इसकी? ब्रांच बक्कल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व. सो द करेक्ट आंसर वुड बी facial nerve. Buccinita muscle is pierced by facial nerve. Paranasal sinuses are all except maxillary sinus, mastoid ear sinus, sphenoid sinus or ethmoid sinus. What are paranasal sinus? So paranasal sinuses are air-filled extensions within our facial skeleton, like skull. There are 4 paired sinuses. तो ये होते हैं फ्रंटल साइनस, एथमॉइडल साइनस, मैक्सिलरी साइनस एंड स्फेनॉइड साइनस. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज mastoid ear sinus. Paranasal sinus are all except mastoid ear sinus. The middle meningeal artery is a branch of maxillary artery, facial artery, ascending pharyngeal artery और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी. तो ब्रांचेस जो होती है मैक्सिलरी आर्टरी की कौन कौन सी होती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट होती है 1, 2 and 5 are very important arteries. Middle meningeal artery, accessory meningeal artery, anterior tympanic branch, deep auricular branch और inferior alveolar artery. So middle meningeal artery किसकी branch है? Maxillary artery. Okay, so the correct answer for this question is maxillary artery. The middle meningeal artery is a branch of maxillary artery. Spinal cord in adults ends at the level of first lumbar vertebra, second lumbar vertebra, third lumbar vertebra और 12th thoracic vertebra. तो ये मैंने आपको पिक्चर में शो किया हुआ है कि जो बर्थ है और एडल्ट ये दोनों पे आपको शो किया हुआ है. तो जो L1 है, ओके, यहाँ पे एडल्ट में होता है ये L1 पे एंड, ओके, और बर्थ में L3 में, ओके. तो स्पाइनल कॉर्ड एडल्ट्स में एंड कहाँ पे होती है? फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा पे, ओके. तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा. द स्पाइनल कॉर्ड्स इन एडल्ट्स एंड्स एट द लेवल ऑफ फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा, ओके. Stapedius is supplied by mandibular nerve, glossopharyngeal nerve, oculomotor nerve और facial nerve. तो ये स्टेपीडियस का मैंने पूरा आपको डिटेल दिया हुआ है. फर्स्ट ओरिजिन कहाँ से होगा इसका? इंटरनल वॉल ऑफ द होलो पिरामिड. इंसर्शन होगा द नेक ऑफ द स्टेप्स एंड नर्व सप्लाई बाय फेशियल नर्व. और एक्शन क्या होता है इसका? रिफ्लेक्टली द डैम्प्स डाउन, ओके. तो सप्लाइड किससे हो रही है ये? फेशियल नर्व से, ओके. स्टेपीडियस इज सप्लाइड बाय फेशियल नर्व. द nasolacrimal duct open into superior meatus, middle meatus, hiatus semilunaris of middle meatus और inferior meatus. तो जो nasolacrimal duct होती है इसमें क्या होता है कि जो मेम्ब्रेनस पैसेज होता है 18 mm लॉन्ग होता है, ओके. लैक्राइमल सैक के लोअर एंड से ये स्टार्ट होता है एंड ओपन्स इनटू द इंफीरियर meatus ऑफ द नोज, ओके. nasolacrimal duct opens into inferior meatus of the nose. Middle cerebral artery is a branch of internal carotid artery, vertebral artery, basilar artery और subclavian artery. तो जो middle cerebral artery है, it is a large terminal branch and main continuation of internal
carotid artery, and together the middle and anterior cerebral arteries are referred to as anterior circulation of the brain. तो इसमें क्या होता है कि जो मिडिल और एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी है, इन दोनों को एक साथ क्या कहा जाता है? एंटीरियर सर्कुलेशन ऑफ द ब्रेन. ओके, तो ये कहाँ से निकल रही है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से. तो जो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी है, इट इज़ द आर्टरी मोस्ट ऑफन ऑक्लूटेड इन स्ट्रोक. ओके, ये आपको याद रखना है. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज internal carotid artery. Middle cerebral artery is a branch of internal carotid artery. Peyer's patches are seen in the stomach, duodenum, intestine or appendix. तो जो Peyer's patches होते हैं वो क्या होते हैं? Clusters of lymphoid follicles. ओके, और ये कहाँ पे मिलते हैं? Peyer's patches are found in submucosa of ileum. ओके, इसकी जो वॉल में होती है, डिस्टल पोर्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और इसका सिमिलर स्ट्रक्चर और ऑल्सो फाउंड इन द अपेंडिक्स. ओके, तो ये कहाँ मिलता है आपको? इंटेस्टाइन में. Peyer's patches are seen in intestine. ओके, tonsils develops from first pharyngeal pouch, second pharyngeal pouch, third pharyngeal pouch, fourth pharyngeal pouch. तो ये मैंने आपको पूरा डिटेल दिया हुआ है कि जो फर्स्ट फेरेंजियल पाउच है उसके डेरिवेटिव्स क्या क्या होते हैं? टिम्पेनाई कैविटी, ऑडिटरी ट्यूब, इनर सरफेस ऑफ द आर्च. ओके, ईयर. सेकेंड फेरेंजियल का पैलेटाइन टॉन्सिल, टॉन्सिलर फोसा. थर्ड फेरेंजियल्स के डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? थाइमस, इंफीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड. फोर्थ फेरेंजियल पाउच की सुपीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड एंड थायरॉइड ग्लैंड. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज टॉन्सिल्स डेवलप फ्रॉम second pharyngeal pouch. Okay, foramen cecum refers to opening of thyroglossal duct, ductus deferens, both of the above, none of the above. तो जो foramen cecum होता है, it is a actually small pit or depression in the tongue and superficially located at the intersection of the sulcus terminalis and the median sulcus. It is an embryological remnant that indicate the origin of the thyroglossal duct. So foramen cecum refers to the opening of thyroglossal duct. It is a structure that involved in the thyroid gland development. Okay. Nerve fibers with the highest velocity of conduction is A alpha, A beta, A gamma, A delta. तो यहाँ पे कंडक्शन वेलोसिटी दी हुई है जिसमें सबसे ज़्यादा कंडक्शन वेलोसिटी किसकी है? ए अल्फ़ा. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए अल्फ़ा. नर्व फाइबर विद द हाइएस्ट वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन इज ए अल्फ़ा. इन स्केलेटल मसल्स कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन इज कैलमोडुलिन, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन डी, कैलबाइंडिन डी. तो ये पूरा चार्ट मैंने दिया हुआ है. तो स्केलेटल मसल में कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन कौन सा होगा? स्केलेटल मसल कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन इज ट्रोपोनिन सी. Cushing syndrome is associated with all of the following except moon face, pendular abdomen, poor wound healing or hypoglycemia. Cushing syndrome it is a disorder characterized by prolonged exposure to high level of cortisol. और इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? मून फेस, पेंडुलर एब्डोमेन, पुअर वुंड हीलिंग. सब एक इसका नहीं होगा फीचर, वो है हाइपोग्लाइसीमिया. ओके, तो कुशिंग सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विथ ऑल एक्सेप्ट हाइपोग्लाइसीमिया. द फाइनल स्टेज of synthesis of 1,25 dihydroxy cholecalciferol takes place in liver, kidney, bone marrow, spleen, and the correct answer for this is kidney. Okay, final stage होगा. okay, correct answer होगा kidney.
Leydig cells in the testes secrete inhibin testosterone, androgen binding protein, luteinizing hormone. तो ये मैंने बताया आपको, ये फिगर इसमें शो हो रहा है कि क्या क्या आपको यहाँ पे सीक्रेट हो रहा है. ओके, ये लेडिंग सेल्स जो कि इंटेस्टाइनल सेल होती है ऑफ द टेस्टिस और प्रोड्यूस करती है टेस्टोस्टेरॉन. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज testosterone. Leading cells in the testes secrete testosterone. The hormone involved in parturition is estrogen, progesterone, oxytocin और prolactin. Okay? तो इसमें क्या है? Parturition means childbirth. Okay? So which hormone involved in parturition? And the correct answer is oxytocin. ऑक्सीटोसिन जो है स्टिमुलेट करता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को एंड हेल्प करता है चाइल्ड बर्थ में, मीन्स पार्चुरेशन. ओके, इन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पी वेव इज एसोसिएटेड विथ आर्टीरियल डिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, आर्टीरियल रिपोलराइजेशन और वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन. तो पी वेव क्या करता है? डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया इन रिस्पॉन्स टू एसए नोड. ओके, atrial depolarization. So the correct answer is in electrocardiogram P wave is associated with atrial depolarization. Cyanosis is associated with anemia, histotoxic hypoxia, hypoxic hypoxia और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग. तो साइनोसिस में क्या क्या होता है? हाइपोक्सिक hypoxia. Okay, hypoxic hypoxia, it is a less atrial PO2 हो जाता है and more reduced hemoglobin हो जाता है. When it exceed more than the 5 gram, then cyanosis develop. Okay, so the correct answer is cyanosis is associated with hypoxic hypoxia. Broca's area is motor area for speech, memory, sleep और vision. तो जो ब्रोकास एरिया है इट इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड. वर्निक्स एरिया जो है इट इन्वॉल्व्स इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पीच एंड मोटर कॉर्टेक्स इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ मसल्स एंड एक्यूरेट fasciculus कमेंट्स द वर्निक्स एरिया टू ब्रोकास एरिया. इन दोनों को कनेक्ट करता है. ओके, तो ब्रोकास एरिया क्या करता है? इट इज़ इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ब्रोकास एरिया इज मोटर एरिया फॉर स्पीच. हाइपोटोनिया अकर इन लीजन ऑफ बेसल गैंग्लिया, मेडुला, सेरिबेलम, पोन्स. तो जो सेरिबेलम के फंक्शन है उसमें क्या होता है? इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सेरिब्रल डैमेज सजेस्ट दैट द सेरिबेलम इज इन्वॉल्व विद द कंट्रोल ऑफ मूवमेंट. तो उसमें 4 कॉमन सेरिब्रल सिम्टम्स होते हैं जिसमें हाइपोटोनिया सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जिसमें क्या होता है कि लो मसल टोन हो जाती है जिसके कारण डिक्रीज हो जाती है डिसेंडिंग ड्राइव टू द फ्यूजी मोटर सिम्टम्स. ओके, तो हाइपोटोनिया अकर्स इन लीजन ऑफ सेरिबेलम. Infant respiratory distress syndrome in premature infant is due to the deficiency of cephalin, lecithin, cardiolipin और plasmogen. So the correct answer क्या होगा इसका? तो जो infant respiratory distress syndrome होता है ये premature infant में होता है. किसकी कमी से होता है? Because of lecithin, deficiency of lecithin. Okay, plasma protein associated with oncotic pressure is alpha 1 globulin, albumin, alpha 2 globulin, beta globulin. तो जो oncotic pressure होता है उसमें क्या होता है? 90% by the weight of the plasma is water and 8% is plasma protein. कौन कौन से प्रोटीन होते हैं? albumin, globulin और फाइब्रिनोजन. तो जो ब्लड प्लाज्मा होता है वो एक्वा सॉल्यूशन में कंटेन करता है डिफरेंट टाइप के आयंस जैसे कि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम. और ये जो नॉन
डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि ग्लूकोज और अमीनो एसिड एंड प्रोटीन्स, ये इसमें प्रेजेंट होते हैं ब्लड प्लाज्मा में। ओके, तो ऑन्कोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड प्लाज्मा किसके कारण होता है? एल्ब्यूमिन एंड ग्लोब्यूलिन। प्लाज्मा प्रोटीन associated with oncotic pressure is albumin. Which of the following has antioxidant property? Vitamin K, vitamin B12, biotin or vitamin E? So what are antioxidants? Antioxidants are compounds that protect cells from the damage caused by oxidation. तो न्यूट्रिएंट विथ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होगी? विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन ए और सेलेनियम। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी? एंड द करेक्ट आंसर इज विटामिन ई। विटामिन ई हैज़ antioxidant property. Which of the following is the active form of vitamin D? Cholecalciferol, 25 hydroxy cholecalciferol, 125 dihydroxy cholecalciferol, all of the above. And the correct answer is, so the active form of vitamin D is 125 dihydroxy cholecalciferol. Precursor of bile acid is cholesterol, free fatty acid, acetyl coenzyme A और HMG coenzyme A। तो जो बाइल एसिड है सिंथेसिस डिसऑर्डर, उसमें क्या होता है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ रेयर डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द डिफेक्ट्स इन क्रिएशन और सिंथेसिस इन बाइल एसिड। ओके, प्रिकर्सर ऑफ बाइल एसिड इज कोलेस्ट्रॉल। तो जो कोलेस्ट्रॉल है इट इज़ अ की इंग्रेडिएंट्स इन मेकिंग ऑफ बाइल एसिड। ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कोलेस्ट्रॉल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।